3 دن قبل پٹنہ میں جو احتجاج ہوا جس میں وقف بل کی مخالفت میں اور اس احتجاج کا ایک پیغام کی گیا کہ ہندوستانی مسلمان وقف بل کے معاملے میں ایک ساتھ ہیں، اس اتحاد و اتفاق کے رد عمل میں آج پٹنہ میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی شرمناک اور سر جھکا دینے والا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج شام سے پہر امارت شریعہ پہ جنرل یو کے چند لیڈران جس میں خالد انور، اشفاق کریمی جیسے لوگ حملہ کیے، اور بتلایا جاتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے خالد انور اور مولانا ابو طالب رحمانی جیسے شیطانی دماغ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اور یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہندوستانی مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں یہ حملہ کا کیا پیغام ہے؟ آخر جنرل یو حملہ کیوں کرا رہی ہے؟ اور یہ جو مسلم لیڈران ہیں جنرل یو کے، اس میں اشفاق کریمی اور خالد انور اور ابو طالب جیسے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اس سے امت کو کیا نقصان پہنچے گا؟ اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب فاروق صاحب ہیں۔ فاروق صاحب اس موضوع کو اس لیے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ پٹنہ کی سیاست کو اچھے جانتے ہیں اور کئی سالوں تک پٹنہ میں صحافت بھی کیا ہے۔ فاروق صاحب، آپ کا انصاف نیوز آن لائن میں خیر مقدم ہے۔ آج آپ نے جو پٹنہ کی جو تصاویر دیکھی ہے، اس تصاویر دیکھنے کے بعد آپ کا پہلا رد عمل کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلا رد عمل تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیطان کے آزاد ہونے میں 2-3 دن باقی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شیطان قید ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ شیطان گشت کر رہے تھے اور جہاں مسلمان اتحاد و اتفاق کی بات پر متفق تھے وہاں یہ شیطان اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے آج عملی شکل میں سامنے آ گئے ہیں۔ جو کچھ ہوا آج پھلواری شریف میں اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایسے وقت میں جب ضرورت مسلمانوں کی یہ ہے کہ متحدہ اور متفقہ فیصلہ کریں، صرف اقتدار کی ہوس اور لالچ میں چند مٹھی بھر لوگوں نے حکومت کے فرستادہ اور گماشتے، جس میں اشفاق کریم اور آپ نے نام لیا جن کا خالد انور صاحب اور قبلہ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب حفظ اللہ تعالی، اللہ ان کو جو ہے حفاظت سے رکھے، یہ لوگ شامل ہوئے اور اپنے گنڈوں کو بھیجا، وہاں پہ حملہ کروایا۔ مقصد اس کے پیچھے یہی تھا کہ عمارت کے اس مورل کو ڈاؤن کیا جائے جس مورل کے تحت اس نے وقف بل پر مسلمانوں کو متحدہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جمعے کے دن احتجاج، جمعہ کہہ رہے ہیں 26 مارچ کو ایک احتجاج کا انعقاد کیا تھا گردنی باغ میں۔ وہاں پہ جو بھیڑ اکٹھی ہوئی، جو مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کا مظاہرہ ہوا، اس سے حکمراں طبقے، خاص کر کے بہار میں جو حکمراں طبقہ ہے جنتا دل یونائٹڈ، نتیش کمار اور ان کے جو گماشتے ہیں، ان کے پسینے چھوٹ گئے، اور ان کو لگا کہ اگر یہ اتحاد ختم نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے کرسی خطرے میں پڑ جائے گی اور مسلمان سڑکوں پر اتر جائیں گے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک سازشی دماغ سامنے آیا اور یہ حرکت کی گئی جس کا آج ہم لوگوں نے سفر کو مظاہرہ کیا۔ عمارت جس کی ایک تاریخ رہی ہے، عمارت بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں، ریاستوں ہی نہیں بلکہ ہندوستان گیر پیمانے پر عمارت کی ایک اپنی وقت ہے، ایک وقار ہے، دین کی رہنمائی اور ملت کی رہنمائی کے معاملے میں اس کا ایک امتیاز رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی۔ فاروق صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 26 مارچ کے احتجاج کے بعد یا اس سے قبل جو نتیش کمار کی افطار پارٹی کا بائیکاٹ ہوا، اس سے بعد جو جنرل یو کی جو مسلم لیڈران ہیں جس طرح کی زبان استعمال کر رہے تھے، وہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے وہ نتیش کمار اور جنرل یو کی اعلیٰ قیادت کی اشارے پہ ہوا ہے، اور یہ جو خالد انور ہے، اشفاق کریم ہے، ابو طالب رحمانی ہے، یا ان کی جو حامی ہے، یہ حکومت کے صرف ایک پیادہ بن کر بنے ہوئے تھے؟ میں تو جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ چائے سے زیادہ پیالی گرم ہے۔ یہ خالد انور صاحب کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، کس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، عمارت کے وقار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، عمارت کی ساکھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمارت جو ہے کسی دوسری سیاسی پارٹی کے شہ پہ یہ کام کر رہی تھی، جو مسلمانوں کا احتجاج ہوا گردنی باغ میں۔ تو اس سے افسوسناک پہلو اور کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بات نتیش کمار کی کسی غیر مسلم لیڈر نے نہیں کہی۔ یہ خالد انور صاحب آستین کے سانپ ثابت ہوئے اور کھل کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہوا وقف کے سلسلے میں عمارت کی قیادت میں، یہ جو ہے، اور جبکہ خالد انور کی جو ایم ایل سی وہ صرف امارت شریعہ کے مرہون منت ہے۔ جی جو ان کا ایم ایل سی شپ ہے یا جو کچھ ان کی ابھی حیثیت ہے، وہ عمارت کی ساکھ کو داؤ پر لگا کر کے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ عمارت کے معصوم صفت مولوی گمراہ ہو گئے اور اس کی حمایت کی۔ مولویوں کو معصوم بتا رہے ہیں۔ اس کی پس پشت ایک لمبی کہانی ہے، پھر کسی موقع پر میں بیان کروں گا کہ ہمارے ولی رحمانی صاحب یا جو بھی ہو، خیر وہ ایک قصہ ماضی ہو گیا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ آج کی صورتحال یہ کہ ان کا بیان سن کر کے کسی بھی غیر جانبدار آدمی کو، کئی غیر مسلم دوست ہمارے وہ ویڈیو مجھے دکھائے اور بتائے کہ دیکھو بھائی یہ تم لوگ جو ہے کیا کر رہے ہو، یہ تو بتا رہا ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں، پروجیکٹڈ ہے یہ۔ جی۔ تو اس سے شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
मतलब मेरा एक तीसरा सवाल आपसे है कि एक ऐसे वक्त में जब ये लोग इमारत को कमज़ोर कर रहे हैं और ये इमारत मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के साथ खड़ा है, तो क्या मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड को, उसके सदर खालिद सफदर रहमानी साहब को, जनरल सेक्रेटरी को और जो जिम्मेदारान हैं उनको ऐसे लोगों को अपनी सब से नहीं निकालना चाहिए जो उम्मत में इंतशार फैलाने का काम कर रहे हैं? नहीं, निकालने से पहले सवाल ये है कि ऐसे लोगों को सब में शामिल ही क्यों किया गया? जी जी, ये इमारत, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड में मेंबरशिप या रुकनियत की जो शरायत है, वो शरायत को आप पढ़ लीजिए। उस शरायत में कहीं ऐसे लोग शामिल ही नहीं होते हैं, कहीं ऐसे लोग जो उतरते हैं उस शरायत में कभी नहीं उतरते हैं। ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, हमारे मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब और दूसरे लोग हैं, ये तो मरहूम मिन्नत थे, किसी की सिफारिश पर वहां पहुंचे थे और वो सिफारिश के खिलाफ ही खड़े हो गए, एहसान कुर्सी पे आमादा हुए आज। तो ऐसे लोगों को चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड को चाहिए कि ऐसे लोगों को फौरन से पेशतर अपने सफों से निकाले, आस्तीन को साफ सुथरा रखे। और देखिए अजीब बात ये है अपने नाज़िम, आज पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ था, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे ज़्यादा हमी थी, लेकिन खबर जो आ रही है हमारे पास, वो खबर ये थी कि यूनियन के इंतखाब में उतनी पुलिस नहीं थी वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में जितनी पुलिस ये लोग लेके गए। एक मुनज़्ज़म साजिश थी और ये अचानक जो कुछ नहीं हुआ है, इससे एहतजाज के दूसरे दिन से इसकी मनसूबाबंदी हो रही थी। कलकत्ते से कई लोग गए थे जो जेडीयू के हामी हैं, वो खालिद अनवर के साथ बैठ करके चाय नाश्ता करते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं। ऐसे तमाम लोग, कलकत्ते से कई लोगों का काफिला गया था, मैं नाम लेना नहीं चाहता, नाम आपके सामने होगा, आप देख लीजिएगा। उन लोगों ने बैठ कर के मनसूबाबंदी की। हमारे एमएलसी साहब और दूसरे लोगों ने मकामी थाने को फोन किया, मकामी थाना जो है ताउन नहीं किया, तो जो है एसपी को फोन किया गया कि हम लोग जा रहे हैं वहां पर, फलां साहब को हटाना है, हम लोग कब्जा लेंगे और कब्जा लेने के दौरान हमारी हिमायत कीजिएगा। सवाल यही है कि भाई अगर किसी ये अचानक कुछ नहीं हुआ है, से आपका किसी इदारे के सदस्य से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका है, उसका उसूल है। अगर आपको एतमाद नहीं है तो आप उसके तमाम मेम्बरान जमा होते, अदम एतमाद का नोटिस देते, इस तरह से अचानक हमला कर देना, खुद जाली डेट पर ये करना कि हमने हटा दिया है, फलां का मिशन बना दिया, फलां कुछ कर दिया है, ये किस तरह की जालसाजी है? ये जालसाजी तो है ये, लेकिन जानते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचने वाला है, ये मुसलमानों के वक्फ के ताल्लुक से पहुंचने वाला है। इस मामले को नीतीश कुमार और उनके जो साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां हैं, वो बताएंगे कि वक्फ के मामले में ये लोग साथी नहीं है। जो इदारा वक्फ के लिए एहतजाज बुला रहा है, उस इदारे में इत्तफाक राय नहीं है। उसके कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वक्फ का बिल सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। तो मुसलमान आपस में ही मुत्तहिद नहीं है किसी एक पॉइंट पर, तो फिर हम सही हैं। जब मैं इस पे एक नुक्ता बताना चाहूँगा, आपसे इस्तेफ़ाक़ करें ना करें, उसमें कलकत्ता के हालात से भी मुदावत कर सकते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में इमारत में वो किरदार अदा नहीं कर पा रही थी जो इमारत का तारीखी किरदार रहा है, जो चाहे वो मौलाना हसन सज्जाद दमानी का दौर रहा हो, चाहे वो मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब का था, उससे पहले वाला जो दौर है, या फिर उसके बाद मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के दौर तक जो किरदार रहा है। हुकूमत इधर आके इमारत की तासुर ये मिला कि इमारत जो है नीतीश कुमार के साथ खामोशी से खड़ा है। ये आज की बात नहीं, गुज़िश्ता 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जब से नीतीश कुमार की हुकूमत बनी है या उससे पहले से भी इमारत के जो सरकर्दा शख्सियात हैं वो नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिला रही हैं, हर मामले में उनके साथ। और मेरा सवाल यही है, वक्फ के मामले में भी इमारत के वो लोग जो आज इमारत के साथ नहीं है, कभी खुल करके सामने नहीं आए। मेरा सवाल वही है कि क्या ये पैगाम नहीं है मुस्लिम तंजीमों को, इदारों को, कि जब आप अपनी खुदमुख्तारी को दाव पे लगा दीजिएगा या खुद सुपर्दगी कर दीजिएगा, तो ये जो इख्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो अगले दिन जहाँ आप उठने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इस तरह से सब कुछ चल देगा। देखिए आज जो कुछ हुआ है वो जो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, ये इमारत में शामिल होने की जो 3-4 लोगों की कोशिश थी, जिनका नाम आपने लिया है, वो कोशिश उनकी कामयाब हुई एक तरह से, और एक तरह से नाकाम भी हुई। कामयाब किस तरह से हुई? कामयाब इस तरह से हुई कि उनके लोग ही उस इदारे पर अभी काबिज हैं। नाकाम इस तरह से हुई कि उनकी अहमियत अब उस इदारे में और नहीं रही है। वो चाह रहे थे कि उस इदारे में मेरी अहमियत हो और हुकूमत की गोद में हम जाकर के बैठे, हुकूमत से बहुत कुछ हम हासिल करें। वो नाकाम रहे इस सिलसिले में हासिल करने में। अब चाह रहे हैं कि इदारा मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में आ जाए ताकि हुकूमत उनकी अहमियत को समझे। लेकिन ये आप इस माने मुबारकबाद के मुतल्लिक हैं कि आपने खुद इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में 3-4 महीने कबल ही हमने बता दिया था कि ये तालिब रहमानी साहब जैसे लोग जो हैं, इस तरह से कहा जा सकता है कि शैतानी दिमाग लेकर इमारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। तालिब रहमानी वही है जो मौलाना रहमानी के दौरान इमारत में जाकर काबिज हो चुके थे और अपने इशारे पे काम कर रहे थे।
शायद कि फैसल रहमानी साहब के दौर में उनको वो पोजीशन नहीं मिली, तो जिसके वो ख्वाहिशमंद थे। इसके वो आप ख्वाहिशमंद शैतानी दिमाग कह रहे हैं, मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा। जी। अब इंसानी शख्सियत में हमारे सामने आते हैं, हमारे अच्छे साथियों में हैं, हम उनको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। लेकिन ये मिल्लत में इस इंतशार पैदा करने की जो कोशिश है उससे बाज आ जाएं और मिल्लत को मुत्तहद रखने की कोशिश करें। ये वक्ती मुफाद, कहीं एमएलसी बन जाना, किसी को टिकट दिला देना, 500, 1000 या लाख रुपए या 2 लाख रुपए के लिए कोई चीज कर लेना, किसी की पैरवी कर देना, सिफारिश कर देना, इन सब चीजों से कुछ हासिल होने को नहीं है। इन चीजों से बाज आए, बेहतर यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम लोग इस वक्त जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि इदारों को बचाना है। शख्सियात आती और जाती रहेंगी, अगर इदारे बचे रहेंगे तो आप भी बचे रहेंगे। और यही वजह है कि एक बहुत अक्लमंद लोगों ने कहा कि जो ताकतवर कौमें होती है, अक्लमंद कौमें होती हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशन को बनाती है, इंस्टीट्यूशन की हिफाजत करती है। और अफसोसनाक बात यह रहा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन इख्तलाफात के शिकार है। सिर्फ इमारत में रुक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, इमारत की बात ही नहीं, जो आपने कहा कि इदारे को बचाना है, माफ कीजिएगा, मुसलमानों में शख्सियत परस्ती इस बुरी तरह गिर आई है कि वो अब शिर्क से मतजाउज कर रही है। जी जी जी। अब ये देखिए, जमीयतुल उलमा ही की बात ले लीजिए, ये शख्सियत परस्ती की वजह से ही तकसीम हुई, कई मरतबा तकसीम हुई। और भी कई ऐसे इदारे हैं, आप देवबंद देख लीजिए, जी जी, जो कुछ हुआ शख्सियत परस्ती की वजह से हुआ। तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इदारा होता है और इदारे से बड़ा नहीं होना चाहिए। इदारा फर्द से बड़ा नहीं होता, फर्द चाहे कोई भी हो, इदारे से वो बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इदारे के पुष्ट पे खड़े रहे, इदारे के नेक कामों में साथ दें, आगे बढ़ें। और हमारे खालिद अनवर साहब, अशफाक करीम साहब का भी अजीब मामला है। आज मुसलमान उनको ये सिर्फ गोद में बैठाए हुए हैं। 3-4 साल तक वो राजद से जो है राज्यसभा के मेंबर रहे, बिल्कुल कारोबारी शख्सियत है, उनको करोड़ों रुपए का कारोबार करना है, मेडिकल की सीट बेचनी है, इसलिए हुकूमत के साथ वो रहते हैं, हुकूमत के हर सब में नजर आएंगे। कॉपी चोरी कराने के इल्जाम में जेल में जा चुके हैं। अब बताए ऐसे लोगों को जो अब क्या कहा, जेल में जा चुके हैं और उन पर इल्जाम था कि वो मेडिकल का कॉपी चोरी करवा रहे थे और उनको पटना पुलिस ने अब ऐसे ही लोगों से हमारे खालिद अनवर साहब और मौलाना और दूसरे लोगों का तालमेल है। जी जी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये मुफाद परस्त टोला है, इससे मुसलमान होशियार रहें। और एक बार फिर मेरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सरकर्दा शख्सियात और अरबाब हलौकत से दरखास्त है कि ऐसे लोगों को फौरन से पेशतर बोर्ड से बाहर किया जाए। जी बहुत। और इनकी क़यादत में जो छोटी छोटी कमेटियां मुख्तलिफ जगहों पे बना रखी हैं, इस्लाह मुआशरा कमेटी और फलां कमेटी, इन सब कमेटियों को तहलील किया जाए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के जो अहम पैगाम है, आज की जो पटना में जो कुछ ड्रामा देखा, शैतानी अमल देखा हमने, उसका पैगाम यह है कि इदारे के जिम्मेदारान को अकरबा परवरी करने के बजाय सलाहियतमंद और तकवा लिल्लाह वाले लोगों को फायज करना चाहिए। अगर आप इस उसूल से सौदा करते हैं तो ऐसा ही वफादपरस्त लोग पैदा होते हैं। और यही जो कुछ हमने देखा, शिबली कासमी हो चाहे तालिब रहमानी हो, ये वही कोख से पैदा हुए लोग हैं जो वफादपरस्त हैं और अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिससे भी हाथ मिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।